मैं ज्वाइन कर गया हूँ। मैं जरा अच्छा 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 एक्चुअली अच्छा। जाके मैं आ रहा हूँ अभी। इनिशियली आप लोग पढ़ लेना, फिर मैं हाँ आके हाँ वीडियो हाँ ऑन हाँ, करके फिर मैं ठीक भी है पढ़ ठीक है। लूंगा। यू कैरी ठीक ऑन। है ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 अच्छा, तुम्हें हमेशा याद रहता है मेरे ख्याल 33 करना है कि 33 हो चुका है? 33 जहाँ तक करना चाहिए जी। आज मेरे पास नोट नहीं है ना, वो हाँ। लैपटॉप पे रहता था। अच्छा अच्छा ठीक है, तो जी 33 करना है ना? जी जी जी। हाँ। त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रवि कर गौर वरांबरम दधाने वपुर्लकुला वृतानानाब्जम विजया सखे रतिरस्तु मेन वद्या। हाँ Sri Krishna, is the intimate friend of Arjun. हाँ He has appeared on this earth in his transcendental body, which resembles the blue color of Tamal tree. His body attracts everyone in the three planetary systems, upper, middle, and lower. May his glittering yellow dress and his lotus face, covered with paintings of sandalwood pulp, be the object of my attraction, and may I not desire fruitive results. When Sri Krishna, by his own internal pleasure, appears on earth, he does so by the agency of his internal potency. This attractive feature of his transcendental body are desired in all the three worlds, namely the upper, middle, and lower planetary systems. Nowhere in the universe are there such beautiful body features as those of Lord Krishna. Therefore, his transcendental body has nothing to do with anything materially created. Arjun is described here as the conqueror, and Krishna is described as his intimate friend. Bhishma Dev, on his bed of arrows after battle of Kurukshetra, is remembering the particular dress of Lord Krishna, which he put on as the driver of Arjun's chariot. While fighting was going on between Arjun and Bhishma, Bhishma's attraction was drawn by the glittering dress of Krishna, and indirectly he admired his so called enemy Arjun for possessing the Lord as his friend. Arjun was always a conqueror because the Lord was his friend. Bhishma Dev takes this opportunity to address the Lord as Vijay Sakhe, friend of Arjun, because the Lord is pleased when he is addressed conjointly with his devotees who are related with him. In different transcendental humors, while Krishna was the charioteer of Arjun, sun rays glittering on the dress of Lord and the beautiful hue created by the reflection of such rays was never forgotten by Bhishma Dev. As great fighter, he was relishing the reaction of Krishna in the chivalrous humor. Transcendental relation with the Lord in any one of the different rasas humors is relishable by the respective devotees in the highest ecstasy. Less intelligent mundaners who want to make a show of being transcendently related with the Lord artificially jump at once to the relation of conjugal love, imitating the damsels of Brajadhama. Such a cheap relation with the Lord exhibits only the base mentality of the mundaner, because one who has relished conjugal humor with Lord cannot be attached to outwardly or to the worldly conjugal rus, which is condemned even by the mundane ethics. The eternal relation of a particular soul with the Lord is evolved. A genuine relation of the living being with the Supreme Lord can take any form out of the five principal rasas and does not make any difference in the transcendental degree to the genuine devotee. Bhishma Dev is a concrete example of this, and it should be carefully observed how the great general is transcendently related with the Lord.
जी अब ये देखो यहाँ पर जी कई चीजें बता रहे हैं भगवान के बारे में। पहली चीज तो ये है कि वो अपनी ट्रांसीडेंटल फॉर्म में उतरते हैं इस धरती पर। और उनके पर्पस तो बहुत है, भगवत गीता में भी बताया है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत एंड ऑल दैट। और उसके अलावा भी वो, लेकिन जो उनका मतलब जो मेन पर्पस ऐसा लगता है कि वो यही पांचों रसों को दिखाने के लिए अपने डिवोटीज को आते हैं, और उनको, जो उनके अपने डिवोटीज हैं, उनको ये रस प्रदान करने के लिए आते हैं। अच्छा, भीष्म देव भी देखिए उन्हीं के डिवोटी हैं। अब वो बैटल फील्ड पे भगवान से जो इतना प्रेम करते हैं कि वो अपोजिशन में हैं, तब भी वो एक एक उनके डिटेल्स को नोटिस कर रहे हैं। ये जो है, ये डिवोटी की निशानी है। वो जो है, वो भगवान से जब प्रेम करेगा ना कोई आदमी, देखो अभी मंडेन वर्ल्ड में क्या होता है, जब हम किसी को कोई हमें अच्छा भी लगता है तो 99% तो लोग जो है वो, क्या नाम है, उससे ईर्ष्याई करने लग जाते हैं कि यार मैं क्यों नहीं ऐसा हूँ, मुझ में क्या कमी है, वाई आई एम नॉट सो मच ब्यूटीफुल, आई एम सो मच स्मार्ट, ऐसा 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 होता है जी। लेकिन जो ये वाली जो रिलेशनशिप जो डिवोटी डेवलप करता है भगवान से, वैसे काफी लोग तो भगवान से ईर्ष्या ही करते हैं, है ना, ज्यादातर लोग जो है ना असुर जो हैं। लेकिन जो उनका डिवोटी है, जब उनसे प्रेम करने लग जाता है, प्रेम करता है, तो फिर उसको क्या नाम है, मतलब वो भी कुछ कुछ वो मंडेन रिलेशनशिप से ऊपर उठना शुरू हो जाता है। मतलब वो फिर उनको शत्रु की फॉर्म में नहीं देख रहे। ही वॉज ऑलवेज एडमायरर ऑफ लॉर्ड श्री कृष्णा। अच्छा, और अब देखिए कि जब वो अपने बेड पे लेटे हुए हैं, तब भी वो उन्हीं के बारे में, उनकी वही छवि उनके दिमाग में आ रही है पूरे टाइम। एंड आई थिंक that is what is sustaining him even in this great pain है। अच्छा, जी। उसके उसके अलावा क्या नाम है, अब वो भगवान की महिमा का गुणगान भी कर रहे हैं बीच बीच में, मतलब कि भाई जो है वो उनके चेहरा कितना ग्लो, हिज मे हिज ग्लिटरिंग येलो ड्रेस एंड हिज लोटस फेस covered with the paintings of sandalwood but be the object of my attraction। प्रे भी कर रहे हैं, ये रिमेम्बर भी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं भूलूं नहीं किसी भी तरह से, है बिल्कुल ना। जी। एंड मे आई नॉट डिजायर एनी फ्रूटी रिजल्ट, कह रहे हैं कि नहीं मुझे कुछ और नहीं चाहिए, मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, मुझे मतलब ये सब कुछ नहीं चाहिए, आई जस्ट वांट हिज ब्यूटीफुल फेस इन फ्रंट ऑफ माय आईज। ऐसा उनका भाव है जी। है। और वो उनकी महिमा का गुणगान उन्होंने उसमें भी किया है कि भाई ये जो है, Shri Krishna is the intimate friend of Arjuna. He has appeared on this earth in his transcendental body, which resembles the bluish color of tamal trees. His body attracts everyone in the three planetary systems, upper, lower, and middle. क्या नाम है, वो यहाँ पर भी उनकी बॉडीली फीचर को, जो उनकी आंखें देख पा रही हैं, उसको एडमायर करते ही चले जा रहे हैं। तो ये है डिवोटी की निशानी। जी जी। यहाँ पर प्रभुपाद जी ने ये भी कंडेम किया है कि भाई ये आर्टिफिशियल तरीके से नहीं, इवॉल्व होगा। उन्होंने वर्ड यूज किया कि ये चीज इवॉल्व होगी। जो तुम कह रही हो ना, ठीक, मतलब वो ठीक है, लेकिन ये हम लोगों को हर एक का अलग अलग होगा। मतलब किसके ऊपर जल्दी कृपा होगी भगवान की, तुम्हारे ऊपर जल्दी कृपा होगी, ये सब हम नहीं डिटरमिन कर सकते हैं, वो भगवान ही डिटरमिन करेंगे। एक्चुअली वो डिफरेंट लोग डिफरेंट उस पे है ना, डिफरेंट लोग डिफरेंट ट्रेजेक्टरी पे हैं। किसी ने 20% कंप्लीट कर ली है भक्ति, किसी ने 15% कंप्लीट कर ली है, कोई 50% पे है, तो वो कहाँ से पिकअप कर रहा है। अच्छा, एक चीज मुझे और इसमें बड़ी, आप जो बोल रहे थे उसमें मुझे बड़ा अच्छा लगा कि यू सी इसमें भाई इतने इंटेंस पेन में भी वो लॉर्ड कृष्णा पे फोकस करके वो अपने पेन को मिटिगेट कर पा रहे हैं। इससे हम लोगों के लिए बड़ी टीचिंग है कि भाई हम लोगों की लाइफ में भी बड़ी प्रॉब्लम है। हेलो वरुण, पता है वो फोकस नहीं कर रहे हैं, वो उसी में है ही है, उसी को देख ही रहे हैं। हाँ, तो ये हम लोग भी अपनी लाइफ में लेके आए, जी जैसे जी जैसे जी। प्रॉब्लम्स आए उस समय और भगवान का मनन करें, फोर्सिबली फोर्सिबली भगवान का मनन करें। वो सॉल्यूशन तो बाद में आ ही जाएगा, सॉल्यूशन तो बाद बिल्कुल में समझ में जो आना होगा वो भगवान अकल दे ही देंगे। बिल्कुल
बट ये हम लोग अपना प्रैक्टिस करें तो ये मुझे इससे बड़ी टीचिंग लगी कि यू सी इसमें वो अपने डेथ टाइम में भी वो भगवान को याद कर रहे हैं। जी ये हम उसको अपनी डेली प्रॉब्लम्स में भगवान को याद करना स्टार्ट करें बस। जी 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 ये तुमने बहुत ही बिल्कुल पक्की बात बताई है। अच्छा, एक्चुअली अगर आप ये यही दिस इज द सोल्यूशन, एक्चुअली दिस इज द ओनली सोल्यूशन ऑफ हैंडलिंग मटेरियल प्रॉब्लम्स, नंबर वन। जी जी नंबर टू, यू सी, जब आप मतलब आपको अगर आप भगवान के उसमें, जैसे जो द्रोणाचार्य का भाव, अरे उनका जो भीष्म पितामह का जो भाव है, उसमें अगर आ गए तब तो आपको कोई कष्ट होगा ही नहीं। वो तो तीरों के बेड पे लेटे हुए, उनको तो कुछ नहीं हो रहा है, वो तो ही जी इज ऑल द टाइम जी भगवान में ही डूबे हुए हैं। जी लेकिन जिनको मतलब जब ये तकलीफें आती हैं, कष्ट होता है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अभी भी आप बॉडीली कंसेप्शन में हैं, भगवान की हम्म तरफ नहीं है। अब हम्म जो वरुण कह रहे हैं ना कि अपने आप को फोर्स करना चाहिए, दैट इज द हम्म की। आपको हम्म ये पहले शुरू शुरू में आपको फोर्स करना पड़ेगा, अपने आप को बिल्कुल फोर्स करना पड़ेगा। 4 बजे उठ हम्म करके आपको अपने आप को ट्रेंड करना पड़ेगा, आपको हम्म फोर्स करके जब करना पड़ेगा, फोर्स करके ये सब चीजें करनी पड़ेंगी, जी ताकि आप धीरे 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 धीरे, वो जैसे कहते हैं ना, करत करत अभ्यास जड़मत होत सुजान, हम्म रसरी आवत जात देख कर, मैं वो पता नहीं किस पे पड़े 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 निशान पत्थर पर, हाँ है ना। हाँ जी तो ये चीज जो है ना, ये सब मतलब ये इम्पोर्टेंट है, टू प्रैक्टिस कृष्णा हम्म कॉन्शियसनेस। बिल्कुल यू विल बिल्कुल हैव टू सही कह रहे फोर्स। हैं। जैसे अब तुम हो, क्या नाम है, या मतलब जी आई एम गिविंग योर एग्जांपल, सी, यू ओरिएंट योर लाइफ अकॉर्डिंग टू दीज रीडिंग्स। हम्म ये नहीं है कि क्या नाम, द अदर वे राउंड, हम्म कि यू मतलब कि अगर टाइम नहीं, अगर और कोई काम मतलब सांसारिक काम नहीं कर रही, तब तुम अटेंड कर लोगे, जैसा कि बहुत हम्म सारे लोग करते हम्म हैं और वो कभी नहीं अटेंड कर पाते, जी मोस्ट ऑफ देम, है ना। जी तो ये चीज है। जी वेरी नाइस, ये वरुण ने बिल्कुल एग्जैक्टली कहा है कि हम्म भाई जब भी कष्ट आए तो दो चीजें हैं, एक तो भगवान हम्म में तुरंत और ज्यादा मन लगाओ, नंबर वन। और जी नंबर टू, समझ लो कि भैया ये तो मात्रा, इस जो आपका सेंसेस है ना, दे आर ओवर हम्म पावरिंग यू। हम्म और ये हर एक हम्म, की लाइफ में आता ही आता है यार। जी तुरंत आपको अगर मौत के टाइम पे या किसी टाइम पे कष्ट हो रहा है, इसका मतलब कि भैया तुम्हारी अभी भी मंडेन डिजायर्स बची हुई हैं। बिल्कुल बड़ा मुश्किल है ये चीज, लेकिन यार नहीं जीजा जी बहुत आसान है। जीजा जी हम्म। जानते हैं क्यों आसान है? जैसे अभी हमको इतनी इंपॉर्टेंस समझ में आई, तुम इतना कर पा रहे हैं, जब और समझ में आने लगेगा तो हम और कर पाएंगे। और जीजा जी बिल्कुल सही। जानते हैं फिर हम लोग 24 आवर्स उसी में रहेंगे। जीजा जी मैं आपको एक बात बताऊं, एक बार रूपा बहुत डिफिकल्टी में थी, तो रूपा बहुत भगवान के सामने जाके रोई, और जो उसके गुरु ने वो दिया था गुरु मंत्र, उसको जपते जपते वो सो गई। यही जब रूपा बता रही थी कि जब वो सो के उठी, तो जीजा जी उसके अंदर वाले मन में वो गुरु मंत्र चल रहा था, और उसको लगा कि वो उस समस्या से पूर्णतया बाहर आ गई है। भाई ये सब मंत्र की कर्म में पावर ही यही जी होती है। जी 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 मंत्र की जी पावर यही होती है, इसीलिए। और ये तो महामंत्र है भाई, इसको जी कर्म है, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे जी तो ये तो मतलब ये लॉर्ड हिमसेल्फ हैज गिवन इट। जी जी तो ये बिल्कुल, मैं आई एम नॉट टेलिंग जी द लेसनिंग वॉट एवर गुरु, उनके गुरु जी ने जो जी मंत्र दिया था उसकी जी जी पावर जी कम नहीं है, बट बिल्कुल आई एम जस्ट सेइंग, जी है ना। जी तो ये बिल्कुल सही कहा तुमने भैया, वो जो है ना, देखो, वो या तो वो अपने कोई मटेरियल तरीके से साइकोलॉजिस्ट भी हैं, तब भी वो भगवान हम्म की तरफ मुड़ी, है ना। जी साइकोलॉजिस्ट होते हुए भी, जी थेरेपिस्ट होते हुए भी, उसने अपनी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करने की जी कोशिश की, वो जी शी टर्न टू द सुप्रीम लॉर्ड। जी और मंत्र पढ़ते पढ़ते उनको मतलब अपना मन आ गया, वो आ भगवान गया आ जी गए, जी उनके हृदय में जागृत हो जी गए। जी 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 तो ये बात है, हैं। जी तो जी अभी नेक्स्ट वाला पढ़ते हैं, वरुण तो जी अभी आ गए, अच्छा। अगर पढ़ोगे हाँ तो मैं आ पढ़ो। गया हूँ, हाँ मैं पढ़ लेता हूँ। 34th। 34। युद्धि तुरागराजो विधूम्र विश्वाक आचालुलिता श्रमावारी अलंकृतास्ये मम निशिता शरैर्विभिद्यमाना त्वाची विलासा कवाचे स्तु कृष्ण आत्मा।
Translation. On the battlefield where Sri Krishna attended Arjun out of friendship, the flowing hair of Lord Arjun turned ashen due to the dust raised by the hoofs of the horses. And because of his labor, beads of sweat wetted his face. All these decorations, intensified by the wounds dealt by my sharp arrows, were enjoyed by him. Let my mind thus go unto Sri Krishna. Purport. The Lord is the absolute form of eternity, bliss, and knowledge. As such, transcendental loving service to the Lord is one of the five principal relations in one of the five principal relations, namely Shant, Dasya, Sakhya, Vatsalya, and Madhurya, etc. Neutrality, that is, neutrality, servitorship, fraternity, filial affection, and conjugal love is graciously accepted by the Lord when offered to the Lord in genuine love and affection. Sri Bhishma Dev is a great devotee of the Lord in the relation of servitorship. Thus, his throwing of sharp arrows at the transcendental body of the Lord is as good as the worship of another devotee who throws soft roses upon him. It appears that Bhishma Dev is repenting the actions he committed against the person of the Lord. But factually, the Lord's body was not at all pained due to his transcendental existence. His body is not matter. Both he himself and his body are complete spiritual identity. Spirit is never pierced, burned, tried, moistened, etc. This is vividly explained in the Bhagavad Gita. So also it is stated in the Skanda Puran. It is said there that spirit is always uncontaminated and indestructible. It cannot be distressed, nor can it be dried up. And Lord Vishnu, in his incarnation, appears before us. He seems to be like one of the conditioned souls, materially engaged, just to bewilder the asuras or the non-believers, who are always alert to kill the Lord, even from the very beginning of his appearance. Kamsa wanted to kill Krishna, and Ravan wanted to kill Ram because foolishly they were unaware of the fact that the Lord is never killed, or the spirit is never annihilated. Therefore, Bhishma Dev's piercing of the body of Lord Krishna is a sort of bewildering problem for the non-devotee atheists. But those who are devotees or liberated souls are not bewildered. Bhishma Dev appreciated the all-merciful attitude of the Lord because he did not leave Arjun alone, although he was disturbed by the sharpened arrows of Bhishma Dev. Nor was he reluctant to come before Bhishma's deathbed, even though he was ill treated by him on the battlefield. Bhishma's repentance and the Lord's merciful attitude are both unique in this picture. Sri Vishwanath Chakravarti Thakur, a great acharya and devotee in the humor of conjugal love with the Lord, remarks very saliently in this regard. He says that the wounds created on the body of the Lord by the sharpened arrow of Bhishma were as pleasing to the Lord as the biting of a fiancé who bites the Lord's body directed by a strong sense of sex desire. Such biting by the opposite sex is never taken as a sign of enmity, even if there is a wound on the body. Therefore, the fighting as an exchange of transcendental pleasure between the Lord and his pure devotee, Sri Bhishma was not at all mundane. Besides that, since the Lord's body and the Lord are identical, there was no possibility of wounds in the absolute body. The apparent wounds caused by the sharpened arrows are misleading to the common man, but one who has a little absolute knowledge can understand the transcendental exchange in the chivalrous relation. The Lord was perfectly happy with the wounds caused by the sharpened arrows of Bhishma. The word Vibhidyamana is significant because the Lord's skin is not different from the Lord. Because our skin is different from our soul, in our case, the word Vibhidyamana or being bruised and cut would have been quite suitable. Transcendental bliss is of different varieties, and the variety of activities in the mundane world is but a perverted reflection of transcendental bliss. Because everything in the mundane world is qualitatively mundane, it is full of inebrities, whereas in the absolute realm, because everything is on the same absolute nature, there are varieties of enjoyment without inebriety.
The Lord enjoyed the wounds created by his great devotee Bhishma Dev, and because Bhishma Dev is a devotee in the chivalrous relation, he fixes up his mind on Krishna in that wounded condition. इसीलिए ना ये चीजें ओनली एक डिवोटी से ही सुननी चाहिए, ओनली। इतना ब्यूटीफुल रेनेडिशन है ये, भीष्म देव ने तीर मारे हैं लॉर्ड कृष्णा को, और उसको भी कैसे उन्होंने इतना सुंदर तरीके से प्रेजेंट किया है कि लॉर्ड को तो वो एक्चुअली बहुत ही अच्छे लगे हैं। इट इज इक्वल कि जैसे कि कोई फूल ऑफर करता है भगवान को, वैसे ही भीष्म देव ने तीर ऑफर किए हैं लॉर्ड को। और ये बिल्कुल सही है कि भगवान की स्किन, भगवान की बॉडी, बहुत अच्छा इन्होंने कितना अच्छा याद दिलाया कि भाई वो भगवान से डिफरेंट नहीं है, और भगवान तो बिल्कुल स्पिरिचुअल हैं, देयर इज नो मटेरियल टिंज इन देम। तो इसलिए उनकी पूरी बॉडी बिल्कुल वैसी है जैसे स्पिरिट सोल होती है, कि भाई जिसको ना भिगोया जा सकता है, ना मारा जा सकता है, ना काटा जा सकता है, ना उसको मतलब कुछ भी उसको नहीं कर सकते। इसलिए उसके लिए कितना इट इज लाइक भगवत गीता इन एप्लीकेशन। इसीलिए सिर्फ ये किताबें जो एक रियलाइज सोल है उसी से पढ़ना चाहिए, उसी से पढ़ना चाहिए, उसी से पढ़ना चाहिए। और सब नॉनसेंस है, एब्सोल्यूट जंक एंड नॉनसेंस है ये जो टीवी पे या ये जो बाकी जो, बिकॉज दे आर इडियट्स, दे आर इडियट्स, रामाकृष्णन एंड ऑल दैट, दे आर इडियट्स। मेरा तो ये जो तुमने लास्ट में कहा है उसको मैं पहले कहता हूँ। अच्छा, काफी लोग जो है ऐसा है ना, जैसे काफी लोग इस तरह के जंक किताबें पढ़ते रहे अपनी लाइफ में, तो उनका इस टाइप की यूजलेस चीज से अटैचमेंट हो गया है। अब वो उसको छोड़ ही नहीं पा रहे हैं बिल्कुल भी। वो इस टाइप की बिल्कुल क्रम यूजलेस इंटरप्रिटेशंस में ही उलझे हुए हैं, और वो दे मिस द एसेंस ऑफ भगवत गीता। दैट इज व्हाई ये जो रियलाइज सोल्स हैं, तभी प्रभुपाद जी ने एक किताब लिखी है, क्या नाम है, भगवत गीता एज इट इज। जब व्यासदेव जैसे लोग इतनी जबरदस्त वेदों को उन्होंने पूरा लिखा, उसकी टीका लिखी, महाभारत क्रिएट करते, ही वॉज नॉट हैप्पी, ही वॉज नॉट हैप्पी। जब जाके नारद जी ने आकर के अपनी कथा सुनाई है, उनको क्या नाम है जाकर के, तब उनको ज्ञान आया, तब उन्होंने मेडिटेशन किया है, एंड देन ही केम अप विद श्रीमद् भागवतम। तो ये जो लोग हैं ना मंडेनर्स, जो कि दूसरे हैं, क्योंकि ये असुरों ने किताबें लिख दी हैं, तो उससे लोगों का अटैचमेंट हो गया है। इसीलिए मतलब आई एम फियर्सली अपोज टू रीडिंग एनी अदर लिटरेचर एक्सेप्ट फॉर the devotees of Lord Shri Krishna. See? अच्छा, आप देखिए यहाँ पर भी आप श्लोक में, मतलब जो 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 भीष्म देव कह रहे हैं, उसका इंटरप्रिटेशन कितना ब्यूटीफुली दो डिवोटीज ने किया है। एक तो प्रभुपाद जी ने किया है ओवरऑल, और दूसरा उन्होंने रेफरेंस दिया है श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का। एंड यू सी, आई नीड नॉट रिपीट ऑल दैट, बट क्रम है, मतलब ये चीज जो है, ये अब क्या है, लोगों को उनके समझ में ही नहीं आएगा कि भगवान के ऊपर कोई एक आदमी तीर चला रहा है, वो उसको नहीं समझ में आएगा। उसको कहाँ से जब तक भागवतम एक कोई डिवोटी के थ्रू नहीं पढ़ेगा या खाली वो पढ़ लेगा, वो भी नहीं कर रहे हैं लोग, उतना भी नहीं कर रहे। देखिए आप खाली उसमें श्लोक में ही देखिए, और द बैटल फील्ड वेयर श्री कृष्णा अटेंडेड Arjun out of friendship, the flowing hair of the Lord Krishna turned ashen due to the dust raised by the hoofs of the horses। यहाँ पर देखिए कितना एडमायर कर रहे हैं भगवान के इस रूप को। ये है डिवोटी की खास बात। वो नहाए धोए नहीं है, तब भी उनके फ्लोइंग हेयर्स, उनके ऊपर जो धूल जमा हो गई है, उनके ऊपर बीड्स जो धूल के साथ मिल करके एक वो नया ही नजारा उनको दिखाई दे रहा है। And because of his labor, beads of sweat wetted his face. All these he is describing in the shloka itself. All these decorations intensified by the wounds dealt by my short arrows were enjoyed by him. You see, भीष्म देव कह रहे हैं, ये कोई श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर या प्रभुपाद नहीं कह रहे, लेकिन उसको उन्होंने
यहाँ पर खुद भीष्मदेव खुद कह रहे हैं, लेट माई माइंड दस गो टू अनटू श्री कृष्णा। यू सी, दैट इज द ब्यूटी ऑफ श्रीमद् भागवतम। इसको पढ़ना कितना जरूरी है, क्योंकि अदरवाइज आप क्या नाम है भगवान से ईर्ष्या करते ही रहेंगे। यार ये बात आपके समझ में नहीं है, वाई आई एम नॉट द एंजॉयर, मेहनत मैं कर रहा हूँ, वाई आई एम नॉट द एंजॉयर। भाई फिर आप ये तो नहीं कर पा रहे हो ना, इस तरह की चीज कर पा रहे हो कि इवन वुंड्स भी लगते हैं आपको तब भी आप उस पर्सन की तरफ प्रेम से देख पाओ। भाई लॉर्ड कृष्णा के ऊपर तो एरोस चल रहे हैं, येट वो भीष्म देव से कितना प्रेम दिखा पा रहे हैं, उनके डेथ बेड पे आए हैं। भाई शक तो तुम कर सकते हो, ये कोई ह्यूमन बीइंग इस तरह से कर सही सकता बात है? ईर्ष्या तो करना बड़ा आसान है कि भाई हाँ अरे वो तो रासलीला एंजॉय कर रहे हैं, इतनी वाइव्स हैं, इतने वो हैं, भाई ये भी तो करो फिर, ये कर सकते हो। गो हेड पापा, सॉरी। हाँ, तो फिर यहाँ पे तो तुमने तो कवर कर ही दिया और रिपोर्ट में है ही है, तो ये हम नेक्स्ट पे चलेंगे, है ना? ओके, टेक्स्ट 35। सपदि सखी वचो निशम्य मध्ये, निज पर योर बलयो रथम निवेशय, स्थितवती पर सैनिका युरक्षणा, हतवती पार्थ सखे रतिर्मास्तु। In obedience to the command of his friend, Lord Shri Krishna entered the arena of battlefield of Kurukshetra between the soldiers of Arjun and Duryodhan. And while there, he shortened the spans of opposite party by his merciful glance. This was done simply by looking at the enemy. Let my mind be fixed upon that Krishna. Purport. In Bhagavad Gita 1.21 to 225, Arjun ordered the infallible Lord Shri Krishna to place his chariot between the phalanxes of soldiers he had to face in the battle. When the Lord was so asked, he at once did so, just like an order carrier. And the Lord pointed out all the important men on the opposite side, saying, here is Bhishma, here is Drona, and so on. The Lord, being the supreme living being, is never the order supplier or order carrier of anyone, whoever he may be. But out of his causeless mercy and affection for his pure devotees, sometimes he carries out the orders of the devotees like an awaiting servant. By executing the order of the devotee, the Lord becomes pleased as a father is pleased to carry out the order of his small child. This is possible only out of pure transcendental love between the Lord and his devotees. And Bhishma Dev was quite aware of this fact. He therefore addressed the Lord as the friend of Arjun. आप एक्चुअली पानी पी लो, आप पानी पी लो, मैं पढ़ लेता हूँ इसके आगे, आप पानी चलो पी लो, पढ़ो। मैं हाँ पढ़ता हाँ हूँ। हाँ। The Lord diminished the duration of life of the opposite party by his merciful glance. It is said that all the fighters who assembled on the battlefield of Kurukshetra attained salvation by personally seeing the Lord at the time of death. Therefore, his diminishing the duration of life of Arjun's enemy does not mean that he was partial to the cause of Arjun. Factually, he was merciful to the opposite party because they would not have attained salvation by dying at home in the ordinary course of life. Here was a chance to see the Lord at the time of death and thus attain salvation from material life. Therefore, the Lord is all good, and whatever he does is for everyone's good. Apparently, it was for the victory of Arjun, his intimate friend, but factually, it was for the good of Arjun's enemies. Such are the transcendental activities of the Lord, and whosoever understands this also gets salvation after quitting this material body. The Lord does no wrong in any circumstance because he is absolute, all good at all times. ये जो है ना, ये बहुत important चीज है ये।
ये है मतलब बहुत इंपॉर्टेंट, अपनी लाइफ के चैलेंजेस को फेस करने का यही रहस्य है कि आप ये माने कि लॉर्ड की मर्सी है ये। इवन देखिए ना, अब लॉर्ड ने अर्जुन की एनिमीज के ऊपर भी मर्सी करी है कि उनको उनको मुक्ति मिल गई ना, फिर इस वाले जीवन बंधन से मुक्ति मिल गई उनको। इसलिए जब वो एनिमीज पे जो इतने दुष्ट हैं उन पे इतना मर्सी कर रहे हैं, तो डिवोटीज पे तो 100% हर तरह से उनकी मर्सी है। और फिर दूसरी चीज ये भी बार बार कहा हुआ है कि भाई अगर आप डिवोटीज चाहे वो पूरे ढंग से नहीं भी कर पा रहे हैं, अभी 3rd चैप्टर में ही आएगा भगवत गीता के कि अगर वो पूरे ढंग, तब भी दैट इज बेटर देन वो कि वो जो कोई अपना चेंज कर ले, कुछ और करना स्टार्ट कर दे। तो इसलिए डिवोशन में प्रेस्क्राइब ड्यूटी करना टुवर्ड्स लॉर्ड कृष्णा वही सबसे बेस्ट चीज है, चाहे वो नहीं ढंग से हो पाए तब भी वो फिर भी बेटर है। एंड इसमें देखिए ये भी मुझे बड़ा पावरफुल लगा कि इन ओबीडियंस टू द कमांड ऑफ हिज फ्रेंड, मतलब ये लॉर्ड कृष्णा हैं जो कि ओबीडियंस टू द कमांड ऑफ हिज फ्रेंड, कि मतलब लॉर्ड कितने मर्सीफुल हैं कि वो अपने फ्रेंड का, अर्जुन को एक और लिविंग एंटिटी, उसका कमांड मानने को भी तैयार हैं कि भाई आउट ऑफ हिज कॉजलेस मर्सी। वेरी ब्रिलियंट। अब आपको कुछ कहना, आप लोगों को कुछ कहना? 36 हाँ भाई, आप ये देखो ना, यहाँ पर क्या नाम है, कई चीजें उन्होंने बड़ी सुंदर बताई हैं। एक तो जो बड़ा मतलब वरुण ने तो खैर कवर कर दिया है, बट यू सी यहाँ पे कह रहे हैं कि बाई हिज मर्सीफुल ग्लैंस ही शॉर्टेंड द लाइफ ऑफ हिज अपोनेंट्स। एंड उससे उस क्या नजर आता है कि भाई उन्होंने, क्योंकि अदरवाइज तो वो तो आसुरिक रहते हैं, वो रिमेनिंग लाइफ में वो बिल्कुल ही वो इस मटेरियल वर्ल्ड में सफर करते रहते हैं और बाद में अपने वो बिल्कुल क्रम है, फिर वो जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ जाते हैं। बट उन्होंने क्या किया, अपनी ही प्रेजेंस में उनको एक तरह से उनकी लाइफ को खत्म कर दिया, ताकि अब उनकी प्रेजेंस में मरे तो सीधा चले गए वैकुंठ। समझे कि नहीं? दैट इज हाउ ही शोड हिज मर्सी टू देम, व्हाट टू टॉक ऑफ अर्जुन। और फिर दूसरी जो चीज वरुण ने बताई है उसको देखो ना आप यहाँ पर, कि वो ही डज नॉट हैव टू बी मतलब ऑर्डर कैरियर ऑफ एनीबडी बिकॉज ही इज ऑल पावरफुल, ही इज द सोर्स ऑफ एवरीथिंग। तो फिर क्या नाम है, मतलब हाउ कैन ही बी द ऑर्डर कैरियर, बट बिकॉज ऑफ हिज कॉजलेस मर्सी ही डज दिस फॉर हिज डिवोटी। और खाली अर्जुन के केस में ही नहीं, देखिए गोपियां जो थी जब ये छोटे थे तो उनको नचाती थी, मतलब कहती थी डांस करके दिखाओ, ऐसे करके दिखाओ, वो करते थे उनको सबको। जब माँ उनकी क्या नाम है यशोदा जी उनको डंडा दिखा रही है तो रो रहे हैं वो, मतलब वो अपने हाथों से अपनी आंखों को मल रहे हैं, लाल हो जा रही है, उनके गाल लाल हो जा रहे हैं, मतलब वो सब डिस्क्राइब्ड है इसमें भागवतम में और वेरियस क्या नाम है स्तुतिज में। तो ये भगवान का जो इंटेंस मतलब रेसिप्रोकल लव है वो बहुत ही गजब की चीज है। उन्होंने सब ये सब लीलाएं करके दिखाई हैं। और जैसे वरुण का बार बार यही कहना दैट आई ऑल्सो लाइक दैट एस्पेक्ट, भाई इट इज ओनली लॉर्ड श्री कृष्णा हु इज सो ह्यूमेन एट मतलब इन दैट सेंस एंड सो मच क्या नाम है दैट क्या नाम है इवन ही विल गो टू द एक्सटेंट ऑफ बिकमिंग द ऑर्डर कैरियर ऑफ हिज डिवोटीज। इसीलिए और जो लास्ट इन्होंने बताया वो मैं फिर से रिपीट करूंगा कि भाई आप क्या नाम है ना, मतलब बिकॉज ही इज द सर्व कारणम, ही इज द कॉज ऑफ एवरीथिंग एंड ही कैन नॉट बी बैड टू एनीबडी, ही इज एब्सोल्यूट, ही हिज ऑल हिज एक्शंस आर गुड ओनली, ग्रेट ओनली। तो फिर जब आपको कष्ट आ रहा है तो उसके पीछे भी भगवान का हाथ है, तो फिर अगर भगवान का हाथ है देन वेयर इज द क्वेश्चन ऑफ एनी लेमेंटेशन। फिर तो आपको उसको भी एंजॉय, जैसे भीष्म देव एंजॉय कर रहे हैं अपना, वो रहे भगवान में रमे हुए, लाइक दैट। हाँ 36 चलो पढ़ो। 36, हाँ हाँ। व्यवहिता प्रतानान् मुखं निरीक्ष्य स्वजना वाधाद् विमुख्यस्य दोषबुद्ध्या कुमातिम् अहराद् आत्मविद्या यश चरणराति परमस्य तस्यत्मेस्तु। When Arjun was seemingly polluted by ignorance upon observing the soldiers and commanders before him on the battlefield,
The Lord eradicated his ignorance by delivering transcendental knowledge. May his lotus feet always remain the object of my attraction. Purport. The kings and commanders were to stand in the front of the fighting soldiers. That was the system of actual fighting. The kings and commanders were not so-called presidents or ministers of defense as they are today. They would not stay home while the poor soldiers or mercenaries were fighting face to face. This may be the regulation of modern democracy, but when actual monarchy was prevailing, the monarchs were not cowards elected without consideration of qualification. As it was evident from the Battle of Kurukshetra, all the executive heads of both parties like Drona, Bhishma, Arjun, and Duryodhan were not sleeping. All of them were actual participants in the fighting, which was selected to be executed at a place away from the civil residential quarters. This means that the innocent citizens were immune from all the effects of fighting between the rival royal parties. The citizens had no business in seeing what was going to happen during such fighting. They were to pay 1/4 of their income to the ruler, whether he be Arjun or Duryodhan. All the commanders of the parties on the battlefield of Kurukshetra were standing face to face, and Arjuna saw them with great compassion and lamented that he was to kill his kinsman on the battlefield for the sake of the empire. He was not at all afraid of the giant military phalanx presented by Duryodhan, but as a merciful devotee of the Lord, renunciation of worldly things was natural for him, and thus he decided not to fight for worldly possessions. But this was due to a poor fund of knowledge, and therefore it is said here that his intelligence became polluted. His intelligence could not be polluted at any time because he was a devotee and constant companion of the Lord, as is clear in the 4th chapter of the Bhagavad Gita. Apparently, Arjun's intelligence became polluted because otherwise there would not have been a chance to deliver the teachings of Bhagavad Gita for the good of all polluted, conditioned souls engaged in material bondage by the conception of the false material body. The Bhagavad Gita was delivered to the conditioned souls of the world to deliver them from the wrong conception of identifying the body with the soul and to re-establish the soul's eternal relationship with the Supreme Lord. Atma Vidya, or transcendental knowledge of himself, was primarily spoken by the Lord for the benefit of all concerned in all parts of the universe. इसमें ना ये बड़ा एक्चुअली जो इनिशियल पार्ट है वो बड़ा पावरफुल इसलिए मुझे लगा कि यू सी पहले के टाइम में जो मोनार्क्स थे दे वर फेसिंग द कॉन्सिक्वेंस ऑफ वॉर। ये नहीं थे कि हाँ भाई वहाँ सेनेट में बैठे हैं या वहाँ पार्लियामेंट हाउस में बैठे हुए हैं और भाई वोट लेके उन्होंने आर्मी भेज दी ना। वो खुद जाके वहां पे फेस करते थे, खुद उन्हें पता होता था कि भैया ये वॉर का क्या कॉन्सिक्वेंस है। और दूसरी चीज आप ये देखिए कि पहले के टाइम में सिविल जो सोसाइटी थी, जो सिविलाइज रेजिडेंशियल क्वार्टर्स थे, वो एलूफ थे आर्मी के एक्शन से, वेर एज मॉडर्न वॉरफेयर टोटली ऑपोजिट है कि सारी वॉर सिविलाइज्ड एरियाज में ही लड़ी जा रही है। चाहे वर्ल्ड वॉर 2 ले लीजिए, चाहे वर्ल्ड वॉर 1 ले लीजिए, चाहे अभी यूक्रेन वाली वॉर ले लीजिए, कितना ज्यादा एक्चुअली में वी हैव बिकम अनसिविलाइज्ड, वी हैव बिकम एक्चुअली मोर अनसिविलाइज्ड। एक तो ये मुझे लगा। दूसरी चीज जो ये मुझे बड़ी पावरफुल लगी कि अर्जुन की, मतलब उन्होंने ये कहा कि भाई अर्जुन की जो बुद्धि हर ली गई थी, लेकिन वो हम लोगों के लिए है। भगवत गीता एक्चुअली हम लोगों के लिए ही, वो तो ही वाज नॉट, ही वाज मर्सी और कंपैशन उनको आ रहा था फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कि भाई वो रिनंसिएट थे, उनको किसी चीज की इच्छा नहीं थी अर्जुन को, और हमको वो सिखाने के लिए। तो भगवत गीता का थोड़ा बिल्कुल एकदम, बहुत ही योर रियलाइजेशन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। जस्ट उसी में ऐड करना कि भाई वो पुराने टाइम के राजा जो थे लीड फ्रॉम द फ्रंट, केवल इंडिया में ही नहीं, चाहे वो अलेक्जेंडर द ग्रेट हो, चाहे वो उस टाइम के, इवन वो लोग आकर के देवर चार्जिंग फ्रॉम द फ्रंट, और दुश्मन भी उनके सामने ही खड़ा होता था, इंक्लूडिंग के मैं 500-1000 साल पहले जो मुगल्स और इंडियन उनके बीच में लड़ाई होती तो द किंग्स वर
फेसिंग द बैटलफील्ड। तो धीरे धीरे करके आज की डेट में तो ये है कि आपने वरुण ने बता ही दिया। दूसरी चीज, क्योंकि बैटल फील्ड जो है चाहे वो अलग ही होती थी, पानीपत में लड़ रहे हैं या कुरुक्षेत्र में लड़ रहे हैं, लाइक दैट, है ना। ऐसा नहीं है बैटल ऑफ बक्सर मतलब इकट्ठा एक जगह पे आकर के लड़ते थे। देन इट वाज डिसाइडेड देयर, और जो कॉन्करर है देन ही विल बिकम द न्यू टैक्स कलेक्टर, लाइक दैट। और दूसरी चीज ये बता रहे कि प्रजा खुशी खुशी टैक्स देती थी, बिकॉज ये वो जानती थी कि ये राजा जो है उसका मिसयूज नहीं करेगा, वो हमारी वेलफेयर में ही यूज करेगा। और तीसरी चीज जो मुझे एक और जो चीज लगी है कि देखिए भीष्म देव वॉज ए रियलाइज सोल। वो जो है ना वो भगवत गीता के संदेश पे उतना ध्यान नहीं दे रहा है जितना कि वो भगवान को ही एडमायर करते चले जा रहे हैं कि वो क्या क्या कर रहे हैं, भगवान क्या कर रहे हैं बैटल फील्ड में। दैट इज द साइन ऑफ ए डिवोटी। ये देखिए भगवान क्या कर रहे हैं, मतलब ही इज ओबेइंग हिज डिवोटी एंड ही इज डूइंग दिस एंड ही इज डूइंग दैट, लाइक दैट का नाम है। मतलब वो जो है इस चीज को डिस्क्राइब कर रहे हैं। और अगेन मतलब बिल्कुल कर्म है, वो बार बार फिर पे कर्म लास्ट में, मे हिज लोटस फीट ऑलवेज रिमेन द ऑब्जेक्ट ऑफ माय अट्रैक्शन, जो कि अभी हो रहा है उनका, वो ऑलवेज भी, है ना, यही कर्म है। एक्चुअली तो आपने बड़ी अच्छी बात कही। इसी को आगे बढ़ाते हुए वेरी नाइसली यू पुट कि भीष्म देव ये भी हमको बता रहे हैं कि अर्जुन जो है डिवोटी था, जब उसकी इंटेलिजेंस बिविल्डर हो गई थी, पॉल्यूटेड बाय इग्नोरेंस, तो लॉर्ड ने इरेडिकेटेड हिज इग्नोरेंस बाय डिलीवरिंग ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। इसका मतलब क्या, पहली एक तो एक तरह से तो लॉर्ड को ग्लोरीफाई कर ही रहे हैं, लॉर्ड कृष्णा को ग्लोरीफाई कि उन्होंने ऐसा किया, और हमको भी ये बता रहे हैं कि भैया अगर तुम भी भगवान के डिवोटी बनोगे तो तुम्हारी भी जब जब अगर बुद्धि हर ली जाएगी, जैसे जब सिचुएशनली आप ओवरवेल्म्ड हो जाओगे, भगवान तुम्हें भी इंटेलिजेंस देंगे, भगवान तुमको भी उससे निकालने का तरीका बताएंगे। मुझे ये भी लगा, ये जो ऐसे आप कह रहे थे ना कि वो भगवान के एक्टिविटीज को अप्रिशिएट करते चले जा रहे हैं, तो ये मेरे को लगा इसमें मैंने पढ़ के कि हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो। बिल्कुल ये चीज यार, को ये बहुत ब्रिंग आउट किया है भीष्म देव ने कि भाई अर्जुन जो है वो बिविल्डर्ड हो गया था, तो भगवान ने उसे ट्रांसेंडेंटल नॉलेज दी, तो ये हमको भी देंगे वो। ओनली ट्रिक इज दैट यू बिकम हिज डिवोटी। मतलब आप उनके डिवोटी बने का नाम है, मतलब एंड देयर इज नो रीजन नॉट टू बी हिज डिवोटी। ही इज द ऑल पावरफुल, ही इज ऑल रिसोर्सफुल, ही हैज मतलब सब चीजों के, यही जो हम लोग चतुर्श्लोकी गीता में पढ़ेंगे ना, वो पूरा उन्होंने उसमें डाल दिया है। चतुर्श्लोकी गीता में ये चीजें इतना लॉजिकल है, वो चारों श्लोक बहुत ही ब्यूटीफुल है। मतलब दैट इज व्हाई आई वांटेड कि हम अलग से उसको डील करेंगे। तो ये जो चीज है ना, ये कर्म है, मतलब कि डिवोटी आप, मतलब आप जा करके किसी लाला की सर्विस तो करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी बिजनेसमैन की सर्विस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी लाइक दैट, मतलब लेकिन आप भगवान की सर्विस करके तो देखिए, डिवोशनल सर्विस भगवान की देखिए, फिर क्या होता है, ऑल पावरफुल और मर्सीफुल, ऑल अट्रैक्टिव, है ना, all resourceful, like that. He is such is your Lord, such is our Lord, everyone's Lord. Text 37, I think. 37. स्व निगमम पहाय मत प्रतिज्ञा मृत मधर्किर कर्तुम वपलो लुप्तो रथस्य था धृत रथ चरणो भ्याच लदगु हरिरिवे हंतु मिभिहम गतोत्तरीय। Fulfilling my desire and sacrificing his own promise, he got down from the chariot, took up the wheel, and ran towards me hurriedly, just as a lion goes to kill an elephant. He even dropped his outer garments on the way. The battle of Purport. The Battle of Kurukshetra was fought on military principles, but at the same time in a sporting spirit, like a friend's fight with another fight.
Duryodhan criticized Bhishma Dev, alleging that he was reluctant to kill Arjun because of paternal affection. A Kshatriya cannot tolerate insults on the principle of fighting. Bhishma Dev therefore promised that the next day he would kill all the five Pandavas with special weapons made for the purpose. Duryodhan was satisfied and he kept the arrows with him to be delivered the next day during the fight. By tricks, Arjun took the arrows from Duryodhan, and Bhishma Dev could understand that this was the trick of Lord Krishna. So he took a vow that the next day Krishna would have to take up weapons himself, otherwise his friend Arjun would die. In the next day's fighting, Bhishma Dev fought so violently that both Arjun and Krishna were in trouble. Arjun was almost defeated. The situation was so intense that he was about to be killed by Bhishma Dev the very next moment. At that time, Lord Krishna wanted to please his devotee Bhishma by keeping Bhishma's promise, which was more important than his own. Seemingly, he broke his own promise. He promised before the beginning of the battle of Kurukshetra that he would remain without weapons and would not use his strength for either of the parties. But to protect Arjun, he got down from the chariot, took up the wheel of the chariot, and hurriedly rushed at Bhishma Dev in an angry mood as a lion goes to kill an elephant. He dropped his covering cloth on the way, and out of great anger, he did not know that he had dropped it. Bhishma Dev at once gave up his weapons and stood to be killed by Krishna, his beloved lord. The fighting of the day was thus ended at that very moment, and Arjun was saved. Of course, there was no possibility of Arjun's death because the Lord himself was on the chariot. But because Bhishma Dev wanted to see Lord Krishna take up some weapon to save his friend, the Lord created the situation, making Arjun's death imminent. He stood before Bhishma Dev to show him that his promise was fulfilled and that he had taken up the wheel. ये कितना मतलब ब्यूटीफुल है कि भीष्म देव एक डिवोटी की डिजायर को फुलफिल करने के लिए भगवान अपने को भी अपने वचन को सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी हैं। इससे ज्यादा मतलब और क्या ब्यूटीफुल हो सकता है। इसीलिए आदमी को जितना कोशिश कर सके वो भगवान का भक्त बने, ताकि भाई भगवान के साथ वो इस तरह की रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर सके, इतनी ब्यूटीफुल रिलेशनशिप की भाई। और मतलब कि भगवान मतलब डिवोटी की डिजायर को भगवान पूरी करने के लिए किस हद तक जा सकते हैं, ये मुझे बड़ा पावरफुल लगा। अब देखो यहाँ पे इस परपोर्ट में उन्होंने काफी मतलब सारा कुछ एक्सप्लेन कर दिया है, बट अगर आप खाली टेक्स्ट को ही में ट्रांसलेशन को श्लोक को ही देखें, fulfilling my desire and sacrificing his own promise, he got down from the chariot, took up the wheel and ran towards me hurriedly, just as lion goes to kill elephant. He even dropped his outer garments on the way. अब देखो आप कि भीष्म देव जो है खाली भगवान पे ही कंसंट्रेट कर रहे हैं इस स्थिति में ही, मतलब वो ही इज गोइंग ऑन एडमायरिंग although he is about to be killed by the Lord. तभी वो चुपचाप खड़े हो जाते हैं अपना आर्म छोड़ करके, अपना क्या नाम है हथियार उसी समय चलाना बंद कर देते हैं। You see, he is not aware of कि क्या नाम है वो बस जस्ट उन्हीं को एडमायर कर रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं किस तरह से वो उन्होंने he has charged me like a lion क्या नाम है charging an elephant। मतलब वो उनका पूरा ध्यान भगवान में ही लगा हुआ है, और ये उन्होंने खुद ही कह दिया कि मेरी वाऊ को रखने के लिए भीष्मदेव कह रहे हैं, ये कोई परपोर्ट की बात नहीं है। फुलफिलिंग माई डिजायर सैक्रिफाइसिंग हिज ओन प्रॉमिस, ये भीष्मदेव खुद उनके ऑब्जर्वेशन हैं कि भगवान ने आउट ऑफ हिज कॉजलेस मर्सी टू कीप माई वर्ड he has done this, he need not have done this। तो ये बड़ा ब्यूटीफुल है इस श्लोक में कि ये दिस टेल्स अस कि भाई इसके इन चीजों के कितने मतलब आपको डिवोटी बनने की डिवोटीज के क्या लक्षण है वो दिखा रहे हैं यहाँ पे कि जो एक्चुअल डिवोटीज हैं वो कैसे 24/7 ट्रांस में रह सकते हैं, रहते हैं।
भगवान की तो क्वालिटीज को सोच सोच के, भगवान की लीलाओं में क्वालिटीज को देख देख के। सही कह रहे देखिए हो। ना, ये चीज इसीलिए इनका जब भगवान के जन्म कर्म की लीलाओं को पढ़ना, सुनना, डिस्कस करना, ये बहुत ही प्लेजर गिविंग है। आप देखोगे जब हम लोग चतुर्श्लोकी गीता पढ़ेंगे तो उसमें है, मतलब एक ही एक वर्ड में उन्होंने, भगवान ने सब कुछ बता दिया है। तो 38 वरुण पढ़ो 38। तुम। हाँ। शिता विशिखा हतो विशीर्णादांशा कशातजा प्रतिप्लुता अताता येनो मे प्रसाभम अभिसासारा मदवाधार्थम सा भवतु मे भगवान गतिर्मुकुंदा। Translation: May He, Lord Shri Krishna, the personality of Godhead, who awards salvation, be my ultimate destination. On the battlefield, he charged me as if angry because of the wounds dealt by my sharp arrows. His shield was scattered, and his body was smeared with blood due to the wounds. Purport: the dealings of Lord Krishna and Bhishma Dev on the battlefield of Kurukshetra are interesting because the activities of Lord Shri Krishna appear to be partial to Arjun and at enmity with Bhishma Dev. But factually, all this was especially meant to show a special favor to Bhishma Deva, a great devotee of the Lord. The astounding feature of such dealings is that a devotee can please the Lord by playing the part of an enemy. The Lord, being absolute, can accept service from his pure devotee even in the garb of an enemy. The Supreme Lord cannot have any enemy, nor can a so-called enemy harm him because he is Ajita or unconquerable. But still he takes pleasure when his pure devotee beats him like an enemy or rebukes him from a superior position, although no one can be superior to the Lord. These are some of the transcendental reciprocatory dealings of the devotee with the Lord. And those who have no information of pure devotional service cannot penetrate into the mystery of such dealings. Bhishma Dev played the part of a valiant warrior, and he purposely pierced the body of the Lord so that to the common eyes it appeared that the Lord was wounded. But factually, all this was to bewilder the non-devotees. The all spiritual body cannot be wounded, and a devotee cannot become the enemy of the Lord. Had it been so, Bhishma Dev would not have desired to have the very same Lord as the ultimate destination of his life. Had Bhishma Dev been an enemy of the Lord, Lord Krishna would have annihilated him without even moving. There was no need to come before Bhishma Dev with blood and wounds. But he did so because the warrior devotee wanted to see the transcendental beauty of the Lord decorated with wounds created by a pure devotee. This is the way of exchanging transcendental rasa or relations between the Lord and the servitor. By such dealings, both the Lord and the devotee become glorified in their respective positions. The Lord was so angry that Arjun checked him when he was moving toward Bhishma Dev. But in spite of Arjun's checking, he proceeded towards Bhishma Dev as a lover goes to a lover without caring for hindrances. Apparently, his determination was to kill Bhishma Dev, but factually it was to please him as a great devotee of the Lord. The Lord is undoubtedly the deliverer of all conditioned souls. The impersonalists desire salvation from him, and he always awards them according to their aspiration. But here Bhishma aspires to see the Lord in his personal feature. All pure devotees aspire for this. इस वाले में ना मेरे को पहली बार थोड़ा सा उसका समझ में आया कि भाई ये एब्सोल्यूट जो है ना, जो एब्सोल्यूट का जो मीनिंग आता है, एक्चुअली कई बार मैं सोचता था भाई एब्सोल्यूट का क्या मीनिंग है। जैसे ना अब अगर आप थोड़ी देर सोचें कि जैसे स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट को आप कहीं पे भी मेजर करें इट इज द सेम। दैट इज व्हाई दे कॉल कि भाई स्पीड ऑफ लाइट इज एब्सोल्यूट, है ना। अच्छा, तो उसी सेंस में मतलब जैसे लॉर्ड के साथ आप जो भी डीलिंग्स कर रहे हैं, कोई भी डीलिंग्स, चाहे एनिमी भी लगेगा वो सब में कोई मतलब नहीं है, भगवान उसे डिवोशनल सर्विस की तरह ही ले रहे हैं। जैसे पूतना उन्हें मारने आई तो उसको भी उन्होंने माँ का दर्जा दे दिया,
भीष्मदेव ने मतलब उन पे तीर मार रहे हैं, तो वो भी वो उसको उस सेंस में ट्रांसेंडेंटल रसा में उसको डिवोशनल सर्विस की तरह कि भाई ये मेरे को इस तरह से देखना चाहता है। एक्चुअली इंटरेस्टिंग एक्चुअली कि लॉर्ड कृष्णा ही इज द लॉर्ड ऑफ अस ऑल, बट प्योर डिवोटी के साथ ही इज बिल्कुल वो प्योर डिवोटी जैसे उन्हें देखना चाहता है, वैसे वो उसके साथ बिहेव करते हैं। बड़ा ही मतलब इट्स वेरी मतलब काउंटर इंट्यूटिव कि आपको लगेगा भाई एक्चुअली सुप्रीम लॉर्ड हैं वो, ही इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, बट प्योर डिवोटी के साथ प्योर डिवोटी जैसा उनको के साथ डील करना चाहता है। जैसे भाई कोई दास रस में डील करना चाहता है, कोई वात्सल्य रस में डील करना चाहता है, तो भगवान उस तरह से डील करते हैं उससे। जैसे कि मतलब जैसे आ, मदर यशोदा के साथ वो बच्चे की तरह डील कर रहे हैं, और गोपियों के साथ वो उस तरह से डील कर रहे हैं, लवर की तरह डील कर रहे हैं। भीष्म पितामह के साथ वो एक वॉरियर की तरह डील कर रहे हैं, बट सब में वो ही इज टेकिंग इट एज ए डिवोशनल सर्विस। ही नोज कि ये सारे बाकी तो नॉन डिवोटीज तो उनके आसपास ही नहीं फटकते, वो तो उनसे तो वो तो उनके आसपास भी नहीं आ पाते, वो आना ही नहीं चाहते एक्चुअली में। वो नॉन डिवोटीज उनके पास नहीं आना चाहते, इसीलिए भगवान कहते हैं कि भाई वो तो मेरे पास आना ही नहीं चाहते, तो वो तो अपना वो माया में ही लिप्त हैं। लेकिन जो डिवोटीज हैं वो जिस तरह भी आना चाहते हैं, तो भगवान उनके साथ उस तरह से एब्सोल्यूट वे में डील करते हैं। तो ये मुझे इस बारे में समझ में आया ये। वंस अगेन देखो ना आप, अगर श्लोक कोई देखो आप, कितना ब्यूटीफुल है। मे ही लॉर्ड कृष्णा द पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड हु अवॉर्ड्स साल्वेशन, उनका गुण बता रहे हैं, हु अवॉर्ड्स साल्वेशन, बी माई अल्टीमेट डेस्टिनेशन। प्रेयर है ये, वो एक डिवोटी प्रे कर रहा है अपनी इसमें, है ना। बी माई डेस्टिनेशन ऑन द बैटल फील्ड ही चार्ज मी, वो रिमेम्बर कर रहे हैं उनकी लीला को, है ना। ऑन द बैटल फील्ड ही चार्ज मी एज इफ एंग्री because of the wounds dealt by my sharp arrows, as if he knows perfectly well कि उन शार्प एरो से जो वुंड लगे उससे भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ा है। कोई ये सब एज इफ एंग्री बिकॉज ऑफ वुंड्स डेल्ट बाय माई शार्प एरोज, ये केवल अपनी भगवान लीला कर रहे हैं, ये भीष्मदेव को पता है ना, है ना। His shield was scattered and his body was smeared with blood due to the wounds। ये जो है ये भगवान के उस रूप को भीष्मदेव आत्मसात कर रहे हैं, और उन्होंने व्यासदेव जी ने इसको हम लोगों को एज इट इज बताया है, ताकि हम भी इन लीलाओं को अपने दिमाग में बैठा लें, एंड वी आर एबल टू मेडिटेट ऑन ऑल दिस। अगर आप इसको लीला की और कथा की फॉर्म में क्या नाम है, अगर आप आत्मसात करेंगे तो आप फास्टर पहुंचेंगे, इंस्टेड ऑफ इसको ज्ञान के रूप में पकड़ने की कोशिश करेंगे। दैट इज द क्या नाम है, मतलब इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कथा को समझना। कल मैं कोई एक लेक्चर सुन रहा था, एक बड़े बहुत हाई लेवल के जिनको मैं काफी समझता हूँ, वो यही कह रहे थे कि जब व्यथा होती है आपको, तो कथा जो है आपको सोलेस पहुंचाती है। तब उस समय कथा के व्यथा के टाइम में कथा की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जी, तो जीजा जी हम लोग ये रिलेट कर पाते हैं कि जैसे इस परिस्थिति में भगवान ने इनके साथ किया, वैसे ही हमारे साथ भी करेंगे। हमेशा कर रहे हैं वो, हमेशा कर रहे हैं जी। वो परमात्मा के रूप में बैठे हुए हैं, और डिवोटीज के लिए उनका स्पेशल वो है। तो धीरे धीरे करके आप जैसा कर रहे हैं, तो सब इस समय जो हम लोग ये पढ़ रहे हैं ना, भगवान है यहाँ पे, जी बिल्कुल है, ही इज प्रेजेंट हियर, he becomes very pleased when his devotees talk about him, he is there। मतलब ये जो है बिल्कुल पक्का वो यहाँ पे है, सुन रहे हैं वो हमारी बातें। बिल्कुल एक्चुअली बिल्कुल आप सही कह रहे हो, और क्योंकि भगवान प्लीज हो जाते हैं तो उसकी वजह से हमें प्लेजर मिलता है। ये तो है ही, वो ऋषिकेश है ना, तो जब भगवान को खुशी मिलती है कि उनकी लीला डिस्कस हो रही है, तो उसकी वजह से हमको खुशी मिलने लग जाती है। तभी हमको खुशी की अनुभूति होती है ये सब डिस्कस करने में, पढ़ने में। नाइस। चलो अभी आज का यहाँ पे समाप्त करते हैं, हैं? जी हैं? जी है ना।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू।